Today we have to start the second chapter of chemistry, that is matter around us pure? हमारे चारों ओर जो मैटर प्रेजेंट है वो प्योर है या नहीं, हमें उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हाट यू मीन बाय द प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस से मतलब क्या है, और व्हाट डू यू मीन बाय द प्योरिटी ऑफ मैटर। मैटर की प्योरिटी से मतलब क्या है, या प्योर सब्सटेंस होता क्या है। If suppose we are discussing about our daily life, if you are purchasing ghee from the market or you are purchasing milk from a milkman, so what do you mean by the purity in it? If suppose I am discussing about the pure milk, or if we are discussing about the pure ghee, what is the meaning of it? It means that no specific contamination or no other constituent is supposed to be present in milk or in ghee. If suppose no contamination is there, if no other specific component or any specific component is present in milk or ghee, then such type of milk or such type of ghee is said to be pure. But here, in case of substances, the meaning of purity is somewhat different. How we can explain the pure substances, that I will discuss later. First of all, I'll discuss here about the classification of matter. We know well there are two specific ways in which matter can be classified. First one is on the basis of physical classification, and the second one is on the basis of chemical classification. हम लोग जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री स्पेसिफिक क्लासेस: सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस. While according to the chemical classification, matter can be classified into two types. Out of them, one is called as pure substances and the second one is called as impure substances. We know well, impure substances also are known as mixtures. In our chapter 1, in first chapter, we already have studied about the physical classification of matter. Now in this chapter, we have to study about the chemical classification of matter. We know well, on the basis of the chemical properties, matter can be classified into two specific categories. One is pure substances and the second one is called as impure substances or mixtures. Pure substances further can be classified into two types: elements as well as compounds. Elements further get classified into metals, non-metals as well as metalloids. Similarly, your compounds are of two types: organic compounds as well as inorganic compounds. If we are discussing about the impure substances or mixtures, they are of two types: homogeneous mixtures or heterogeneous mixtures. Clear? Now we have to discuss about each and every term which is mentioned here in this classification. Clear? So first of all, we know well, on the basis of the chemical properties, we can classify the matter into two main categories. Out of them, one is called as pure substance and the second type of substance is called as impure substance. So the first question is that what do you mean by pure substances? We can say that those substances which are made up of same type of particles, यानी वो substances जो same type of particles से मिलके बने होते हैं, एक ही टाइप के particles से मिलके बने होते हैं, such type of substances are called as pure substances. What are the pure substances? Those substances which are made up of only one type of particles, means same type of particles, then such type of substances are called as pure substances. Pure substances are of two types. One is elements and the second type of pure substances are said to be compounds. मैंने बताया प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट जो शब्द था उसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने दिया इन 1661. आफ्टर दैट there was a French chemist named Lavoisier. He first defined the element experimentally on the basis of some certain experiments. Lavoisier, a French chemist, defined the elements. तो Lavoisier ने एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्या डेफिनेशन दी? Lavoisier ने बताया जो एलिमेंट होता है, इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर.
मैटर का वो बेसिक फॉर्म होता है विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल रिएक्शंस। साथ में इन्होंने ये भी बताया जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। एक स्पेसिफिक टाइप का जो एलिमेंट है वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलके बना होता है। अगेन आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड एलिमेंट जो शब्द था उसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया 1661 में। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आई लेवोइशियर, उन्होंने एलिमेंट का उसके एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर एलिमेंट को डिफाइन किया और बताया कि जो एलिमेंट है इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। हम इसमें ये भी कह सकते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं सेम टाइप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। एक ही प्रकार के जो एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स मेनली तीन प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि मेटल्स एलिमेंट्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटलॉइड्स। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। Actually, on the basis of the properties, elements can be classified into 3 main categories: metals, non-metals, as well as metalloids. सबसे पहले हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मेटल्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स जिनमें कुछ सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन बाय वन। उन सभी एलिमेंट्स को मेटल्स कहा जाता है। उनमें पहली प्रॉपर्टी है जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर पाया जाता है, एक स्पेसिफिक शाइन पाई जाती है। हमें पता है जितनी भी मेटल्स होती हैं जब भी वो प्योर फॉर्म में पाई जाएंगी तो उनकी सरफेस पर एक स्पेसिफिक शाइनिंग पाई जाती है, एक स्पेसिफिक शाइन होती है। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज सेड टू बी we can say that the metals possess metallic luster and this property of the metal is called as lustricity। तो क्या होता है, लस्टर्स का मतलब है कि मेटल्स में शाइनिंग सरफेस पाई जाती है अगर वो मेटल प्योर फॉर्म में पाया जा रहा है। तो दिस प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द लस्टरिसिटी ऑफ मेटल और इट प्रोड्यूसेस अ स्पेसिफिक लस्टर। दूसरा इनका जो कलर होता है या तो ये सिल्वरी ग्रे होते हैं कलर में या ये गोल्डन येलो होते हैं कलर में मेटल्स। दूसरा है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। साथ में मेटल्स आर मेलिएबल एज वेल एज दे आर डक्टाइल। एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, मेलिएबल शब्द का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मेटल लें, उसको बीट करें विद द हेल्प ऑफ हैमर, देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। आपने क्या, मेलिएबिलिटी का मतलब है हम मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन बीटिंग विद द हेल्प ऑफ हैमर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड एज द मेलिएबिलिटी। दूसरा होता है मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं वी कैन ड्रॉ थिन वायर्स। थिन वायर्स, आप मेटल से थिन वायर प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ the thin wires from a metal and this property by which we can draw thin wire from metal is called as ductility. Next one is metals are sonorous in nature. It means they produces ringing sound. If suppose we are beating the metal with the help of a hard material, it produces the ringing sound. So this property of metal represents sonoricity. There are a number of examples of metals as gold, silver, copper, iron, sodium, potassium. So these are some specific properties of metals. Besides these properties, there are some more properties which are supposed to be shown by the metals. What are those properties? I want to make you understand. Clear? Here we are discussing the properties of metals, non-metals as well as metalloids. The next property that I want to make you understand is metals are hard in nature. We know well metals are hard in nature, but few metals are as such as sodium as well as potassium. They are soft in nature. They are so soft that they can be easily cut with the help of knife. जो metals होते हैं जनरली नेचर में हार्ड होते हैं,
लेकिन कुछ मेटल्स सॉफ्ट हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ओनली वन मेटल इज देयर, दैट इज मरकरी, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। इट मींस दैट मरकरी इज एक्सेप्शन। मरकरी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे मेटल्स सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा जनरली मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन दो मेटल्स हैं, एक सीजियम और एक है गैलियम। ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम होते हैं, इफ यू आर पुटिंग दीज मेटल्स ऑन योर पाम, तो आपकी पाम की हीट को एब्जॉर्ब करके ही ये मेल्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट गैलियम और सीजियम को छोड़ करके बाकी जो मेटल्स होते हैं दे पजेस द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स शो वैरायटी ऑफ कलर्स। अलग अलग कलर्स को शो करने की नॉन मेटल्स में प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये अलग अलग कलर्स को शो करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। जो भी आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल है विच इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट। वी नो वेल इट इज अ वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। दे आर नॉन लस्ट्रस इन नेचर। इनमें स्पेसिफिक शाइन नहीं पाई जाती है, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें एक स्पेसिफिक शाइन पाई जाती है। जनरली नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस हैं, बट आयोडीन पजेस द लस्टर। इसके अलावा जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट सोनोरस। ये सोनोरस नहीं होते हैं, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। जो आपके नॉन मेटल्स हैं ना तो इनमें कोई लस्टर पाया जाता, ना ये सोनोरस होते हैं, ना ये मेलिएबल होते हैं, और ना ये डक्टाइल होते हैं। नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, क्लोरीन। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं या वो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। केवल एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा, एंड दैट नॉन मेटल इज ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं या तो सॉलिड के फॉर्म में पाए जाएंगे या गैस के फॉर्म में पाए जाएंगे। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट, मतलब मेटल्स के कंपैरिजन में ये सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। डायमंड इज सपोज टू बी द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो डायमंड को छोड़ करके बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं। दे ऑल्सो आर कॉल्ड एज सेमी मेटल्स। कोई पूछेगा कि सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स होते क्या हैं? वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से रिजेंबल करती हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वो एलिमेंट्स जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रकार की प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। उनको मेटलॉइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल इज बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये तीनों ही नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं।